Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today we are going to read a lesson of English from 8th grade, Unit 3, 3.2, The Kite Festival. I shall be providing you with the entire warming up exercise, workshop, as well as the margin question and answers at the end of the lesson that you can find the link in the description box. Now, before wasting any time, we shall go ahead. But one more thing that you have to do is like my videos, subscribe my channel if you are new to it, and also share my videos with your friends, those may need it or who may need it. So we shall go ahead with our lesson. This is, I'll do this thing without going ahead. First I'll do this thing. Cut out the wrong kites. Cut out the wrong kites means here you can see there are 3 rows of nouns, verbs and adjectives. Where nouns, the words are given inside the frame of a kite, festival, celebration, tradition, competition. Now all these words are nouns, so none of them can be cut out. Let's see for the verbs. For verbs we have festivity, celebrate, trade, compete. I believe festivity is not a verb because it doesn't you cannot write festivity with two festivity. No, it doesn't make sense. Therefore festivity is not a verb. Rest we can have to celebrate. Yes, it's a verb. To trade. Yes, it's a verb. To compete. Yes, it's a verb. For adjectives, festive, celebrity, traditional, compare. Now I believe festive is an adjective and traditional is also an adjective. But celebrity and compare, these two are not adjectives. So these are the wrong ones. Now next we see the name of the festival you enjoy the most of all. Fill in the facts about the festival. Now this you can do it on your own, but still I will be giving you the answer in the link. You can find name of the festival, when it is celebrated, why it is celebrated, how it is celebrated, special cuisine and other special features. Any other festival which you celebrate, it may be Holi, Diwali, anything. You can write it on your own, but still if you want, you'll find the answers in the link. So let's start with the explanation. The Kite Festival. Years ago, the harassed mother would often say to her restless son, who needed to be kept busy during his holidays, "Why don't you go fly a kite?" And the little boy would happily pick up his kite and run out into the field. कई सालों पहले जो मदर्स अपने बच्चों से परेशान हो जाती थी, उनकी मस्ती से घर में बैठे बैठे परेशान हो जाते थे, छुट्टियों के दिनों में स्पेशली, क्योंकि जब स्कूल होता था तो बच्चे बाहर रहते थे घर से, लेकिन जब छुट्टियां होती है तो दिन भर घर पे रहते थे बच्चे, तो वो उधम मचा देते थे, यहाँ कूदे वहाँ कूदे, यहाँ भागे वहाँ भागे। तो बच्चों से परेशान होकर जो मदर्स थी, परेशान मदर्स, दे यूज्ड टू टेल देयर सन्स दैट गो, व्हाई डोंट यू गो एंड फ्लाई अ काइट। और जैसे ही बच्चे को ये कह दिया कि that of course was in the past when the only kites available were made of kite paper and thin wooden frames. Kite flying has come a long way since then with the invention of motorized and even fiberglass kites to compete with the old-fashioned kites. Today, kite flyers can be found in different parts of the world, carrying different types of kites waiting for the right winds. अब ये जो परेशान मदर्स थी, ये तो बट नेचुरल पुराने ज़माने में ओल्डन डेज की बात हम कर रहे हैं। उस वक्त सिर्फ काइट्स जो अवेलेबल थी और वो थी काइट पेपर की बनी हुई और थिन वुडन फ्रेम्स उसमें होते थे। लेकिन काइट फ्लाइंग उस थिन काइट पेपर से या थिन वुडन फ्रेम से बने हुए उस वहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे। काइट्स में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो इन्वेंशन हुआ है ऑफ मोटराइज्ड एंड इवन फाइबरग्लास काइट्स। मोटराइज्ड काइट्स यानी मशीन से चलने वाली, मोटर से चलने वाली काइट्स, और फाइबरग्लास एक मटेरियल है जो फटता नहीं है, जलता नहीं है, मतलब एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल मटेरियल हम कहते हैं। नॉर्मली काइट्स, पेपर काइट्स होती है, वो फट जाती है हवा से कभी, या हमारे हाथ लगने से भी फट जाती है, बट फाइबरग्लास काइट्स नहीं फटते हैं जल्दी से। तो ये मोटराइज्ड एंड फाइबरग्लास काइट्स जो है आज के ज़माने में compete करने के लिए है हमारे ओल्ड फैशन काइट्स के लिए। टुडे काइट फ्लायर्स हमें सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड काइट फ्लायर्स मिलेंगे जो
हवा के रुख का इंतजार करते हैं, सही हवा के रुख का इंतजार, दैट इज दे वेट फॉर द ब्रीज, द विंड्स, द राइट breeze, and to fly the kites they are ever ready. So all over the world people are ready to fly the kites. Kite flying has a long history. अगर हम kite flying की बात करें तो kite flying की history बहुत लंबी है, जहाँ से शुरू हुई थी और आज कहाँ पर है. There are many Greek, Indian and other mythological stories which tell us about human beings wanting to or trying to fly. ये एक डिजायर ह्यूमंस के अंदर जो जागा था, उड़ने का डिजायर, ऐसे कई सारे स्टोरीज है जिससे हमें पता चलता है कि ह्यूमंस के अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि वो भी उड़ सके. हमने रामायण एंड महाभारता में भी देखा है, उनके स्पेशल व्हीकल्स होते थे, वो लोग उसमें उड़ के चले जाते थे. तो इवन ग्रीक माइथोलॉजिकल्स, इंडियन में भी हम देखते हैं और दूसरे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी हमें देखते हैं कि देर आर पीपल हु ट्राई टू फ्लाई, या हवा के माध्यम से, एयर के माध्यम से वो लोग उड़कर जाते हैं एक दूसरे से दूसरी जगह. तो दिस थिंग हैव मोटिवेटेड पीपल टू फ्लाई. तो फ्लाई कैसे स्टार्ट करेंगे? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डिजायर ऑफ ह्यूमंस एंड द इमेजिनेशन प्रोबेबली लेड टू द इन्वेंशन ऑफ काइट्स. तो ये जो ह्यूमंस का इमेजिनेशन था टू फ्लाई, तो इस इमेजिनेशन से इस काइट्स को मे बी बॉर्न किया है. बिकॉज ऑफ दिस इमेजिनेशन दिस काइट हैव कम इनटू बीइंग. ओके, and it is likely that the box kites designed more than 100 years ago later inspired others to create power driven aeroplanes. और हो सकता है बॉक्स काइट्स एक स्क्वायर, क्यूब या क्यूबॉइड शेप के बॉक्सेस होते हैं जो हवा में, जिसमें एक ही स्ट्रिंग लगी होती है जिसको हम हवा में उड़ाते हैं. मे बी ह्यूमंस को उस बॉक्स काइट को देखकर एक आइडिया आया होगा कि ये बॉक्स काइट्स अभी तो एम्प्टी है, लेकिन क्यों ना ह्यूमंस भी ऐसे किसी बॉक्स में बैठकर उड़ सके. नतीजा, एरोप्लेन्स हमारे सामने हैं. इन इंडिया, however, the tradition of kite flying has not changed. Be it during the coming of spring, which is celebrated as Basant, or during the festival of Makar Sankranti, people of all ages go out into the open to try their luck with their kites. In towns and cities where open spaces are difficult to find, terraces and rooftops are often used for this traditional sport. अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग पतंग उड़ाते हैं, वो लोग एज अ स्पोर्ट उसको उड़ाते हैं, एज अ स्पोर्ट, एज अ गेम इसको एंजॉय करते हैं. बट इंडिया में इसका ट्रेडिशनल वे जो है हम कब उड़ाते हैं, वो अभी भी वैसा ही है. इट हैज नॉट चेंज्ड. चाहे वो कमिंग ऑफ द स्प्रिंग हो, यानी बसंत महीने की शुरुआत हो, या फिर ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति. मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया ऑन 13th और 14th जनवरी. वो पहले 13th और 14th जनवरी आता था, बट अब 14th और 15th जनवरी पे ये शिफ्ट हो गया है डेट. तो इस दिन जो है ऑल एजेस, पीपल ऑफ ऑल एजेस, दैट इज यंग चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड, यंग पीपल और ओल्ड पीपल, एवरीवन कम आउट टू फ्लाई काइट्स. और अगर उनके शहरों में ऐसे खुले मैदान तो कम ही दिखाई देते हैं, शहरों में खुले मैदान नहीं है, तो इससे उनको काइट फ्लाइंग में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. दे गो ऑन देयर टेरेस टॉप्स, बिल्डिंग के टेरेस पे चले जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं. इन गुजरात मकर संक्रांति इज काइट फ्लाइंग डे. गुजरात में मकर संक्रांति का फेस्टिवल का मतलब ही है कि काइट फ्लाइंग डे है. उस दिन तो हमें सिर्फ काइट ही उड़ानी है. ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 13 और 14, एज आई ऑलरेडी सेड, ट्रेडिशनली ये जनवरी 13 या 14 को सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति. एंड इट इज अ हॉलीडे व्हेन पीपल मीट आउटडोर्स टू कट ईच अदर्स काइट्स. और ये जो है हॉलीडे है जब लोग बाहर मिलते हैं एक दूसरे की पतंग काटने के लिए. This day also coincides with the festival of Uttarayan when the sun is set to begin its journey to the northern hemisphere. इस दिन को हम, जो मकर संक्रांति है, उसी दिन उत्तरायण भी होता है. मतलब two festivals coincide each other. That means one occurs at the same time. This day also coincides with the festival of Uttarayan when the sun is set to begin its journey to the northern hemisphere. The people of Gujarat celebrate Uttarayan with a lot of enthusiasm and all business come to a grinding halt for a couple of days.
इट इज ऑल्सो अ सेलिब्रेशन टू मार्क द एंड ऑफ विंटर। तो ये जो है मकर संक्रांति वाला दिन उत्तरायण के साथ कोइंसाइड करता है, यानी एक ही दिन ये दोनों त्योहार पड़ते हैं। और उत्तरायण का मतलब होता है जब सन अपने नॉर्दर्न जर्नी जो है स्टार्ट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा उत्तरायण एंड दक्षिणायन। सो द पीपल ऑफ गुजरात के लोग स्पेशली इस उत्तरायण फेस्टिव को बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और इन दिनों यानी ये उत्तरायण फेस्टिवल या मकर संक्रांति के दिनों गुजरात में जितने भी बिजनेस होते हैं, शॉप्स होते हैं, सब बंद, कुछ चालू नहीं रहता है। एवरीथिंग इज क्लोज्ड, शट डाउन, अ हॉल्ट, अ ग्राइंडिंग हॉल्ट दैट इज कम्स टू एन एंड और कंप्लीटली स्टॉप्ड फॉर अ कपल ऑफ डेज। तो ये एक कुछ दिनों के लिए कंप्लीटली स्टॉप होता है। कपल ऑफ डेज इन द सेंस आप बोल सकते हो करीब करीब एक हफ्ता, पूरे 8 दिन, 7 दिन, 8 दिन तो पूरा बंद ही रहता है। इट इज ऑल्सो अ सेलिब्रेशन टू मार्क द एंड ऑफ विंटर। और ये एक सेलिब्रेशन है, विंटर खत्म हो रहा है उसके लिए भी एक ये सेलिब्रेशन है कि अब विंटर खत्म हो गया और यहां से समर स्टार्ट होगा। द काइट फ्लाइंग बिगिंस एट डॉन एंड कंटिन्यूज विदाउट अ पॉज थ्रू आउट द डे। काइट फ्लाइंग जो है सूरज की पहली किरण के साथ, दैट इज बिगिंस एट डॉन एंड कंटिन्यूज विद अ पॉज। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती है एंड कंटिन्यूज विदाउट अ पॉज थ्रू आउट द डे, और बिना रुके ये पूरा दिन चलती रहती है। पीपल ऑफ ऑल एजेस गैदर ऑन टेरेसेस और रूफटॉप्स। सभी उम्र के लोग जो है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सभी उम्र के लोग, इवन लेडीज भी, जेंट्स, लेडीज, ऑल, दे ऑल गैदर ऑन द टेरेसेस और रूफटॉप्स। अपने घर के छतों पर जमा हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेबर्स, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स compete with one another and cries of trump rend the air with when someone cut the line of a rival। ये सभी लोग, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो या टोटल स्ट्रेंजर्स हो, हम जिनको नहीं भी जानते हैं उनके साथ में भी हम पतंगबाजी करेंगे, यानी उनकी पतंग काटने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी ने किसी की पतंग काट ली तो जोर से चिल्लाते हैं काय पोछे, दिस इज द शाउट ऑफ ट्रम्प, कि मैंने तुम्हारी पतंग काट दी है। दिस इज द शाउट ऑफ ट्रम्प। और पूरी हवा जो है, पूरे एटमॉस्फेयर में ये आवाज गूंजने लगती है। जो कोई भी किसी की पतंग काटता है वो चिल्लाता है। सो अ वंडरफुल वेराइटी ऑफ काइट्स इज सीन एंड द फसी बायर कैन चूज व्हाट ही वांट्स। तो आपको एक बहुत ही वंडरफुल वेराइटी ऑफ काइट जो है देखने को मिलेगी। यानी सिर्फ रोम्बस शेप या स्क्वायर शेप की काइट्स नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं काइट शेप, जो काइट शेप हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, काइट शेप्ड क्वाड्रिलेटरल। तो काइट शेप्ड क्वाड्रिलेटरल के अलावा जो अलग अलग शेप्स आपको मिलते हैं, दे आर इन्यूमरेबल। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा बायर आता है जो बहुत ही फसी है, फसी यानी वो जो चॉइस उसको चाहिए कि जिस टाइप का चाहिए उसी चीज, वही चीज मिलनी चाहिए, तो ऐसे टाइप के फसी बायर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है ये गुजरात में। यहाँ पे उनको जरूर से उनके चॉइस की पतंग मिलेगी। द मोर सीरियस प्लेयर्स प्रिपेयर स्पेशल लाइन्स फॉर देयर काइट्स। और ऐसे भी सीरियस प्लेयर्स होते हैं जो अपने काइट्स के लिए स्पेशल लाइन्स बनाते हैं। लाइन्स यानी धागे, मांझा, स्पेशल धागा बनाते हैं। देयर इज म्यूजिक इन द एयर एंड ट्रेडिशनल डेलिकेसीज आर स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द डे। सब जगह पे वो लोग जोर जोर से म्यूजिक बजाते हैं। देयर इज म्यूजिक इन द एयर। आपको हर टेरेस पे आप देखोगे डीजे सिस्टम लगा के रखते हैं वो लोग, सारे के सारे बिल्डिंग वाले जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, नाश्ता भी रखते हैं, नाश्ता खाना पीना सब रखते हैं वहीं पे कि घर पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। और वहीं पर रहते हैं पूरा दिन टेरेस पर, और सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूअस पतंग उड़ाते रहते हैं और अपनी मनपसंद डेलिकेसीज, डिशेस खाते रहते हैं। तो इस दिन स्पेशली ट्रेडिशनली ये डिशेस बनाया जाता है। उंदियू एक स्पेशल डिश है गुजरात का जो इस दिन पर भी बनाया जाता है। एंड तिल गुड़ तो रहता ही है जो संक्रांत के टाइम पे होता है। दीज डेलिकेसीज ये बनाए जाते हैं स्पेशली। हेल्ड ऑन द सेम डे द बिगर इवेंट हाउएवर इज द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एट अहमदाबाद। और इसी दिन यानी 13-14 जनवरी मकर संक्रांति वाले दिन, इसी दिन एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी होता है और वो अहमदाबाद में ही होता है। अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज करते हैं गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन।
यानी गुजरात की गवर्नमेंट ही, जो स्टेट टूरिज्म से रिलेटेड है, वो गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइज करती है ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। यानी इंटरनेशनल पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम हियर टू डेमोन्स्ट्रेट देयर काइट्स एंड देयर स्किल्स, हाउ दे फ्लाई द काइट्स। और ये जो है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ होता है? एट द सरदार पटेल स्टेडियम और द पुलिस स्टेडियम। सरदार पटेल नाम का एक स्टेडियम है अहमदाबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर है, और या फिर पुलिस स्टेडियम, यहाँ पर ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है। और ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। दिस पॉपुलर फेस्टिवल अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स। और ये जो फेस्टिवल है, इंटरनेशनल काइट फ्लायर्स जो है बहुत अट्रैक्ट होते हैं इस फेस्टिवल के लिए, और वो आते हैं यहाँ पर दूर दूर से, अपने देशों से यहाँ पर इंडिया में, अहमदाबाद में काइट पतंग उड़ाने के लिए। और दे डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स इन फ्लाइंग एक्सोटिक काइट्स। और अपने देश में बनाई हुई काइट्स को लेकर आते हैं, एक्सोटिक दैट इज बिलोंगिंग टू फार अवे लैंड्स। उनके देश में काइट शेप की नहीं होती है, ड्रैगन शेप, बहुत अलग अलग स्नेक का शेप, अलग अलग शेप्स की, घर के शेप की, बहुत अलग अलग शेप्स की आपको काइट्स मिलेगी। कार्टून्स के शेप की, छोटा भीम के शेप की आ जाएगी, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐसे कार्टून्स हैं जिनके शेप की आपको काइट्स मिलेगी। तो इस टाइप के लोग यहाँ पे आते हैं। जो गुजरात के लोग होते हैं उनको तो पता ही होता है, क्योंकि वो लोग डेफिनेटली ऑल ओवर मुंबई में, इंडिया में भी कहीं पर भी रहते हो, गुजरात के लोग इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन कोशिश करते हैं कि वो अपने गाँव पहुँच जाए उड़ाने के लिए और ये सब चीज़ें देखने के लिए, एक्सोटिक थिंग्स। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आते हैं इंटरनेशनल से ये काइट फ्लायर्स, वो लोग अपने स्किल बताते हैं कि कितने स्किल्ड है वो लोग पतंग उड़ाने में। और जो लोकल चैंपियंस हैं वो भी आते हैं और वो बताते हैं कि तुम कितने भी उड़ा लो, पतंगबाजी कर लो, हमारे जैसे तुम नहीं हो। तो लोकल चैंपियंस और प्लस इंटरनेशनल प्लेयर्स, काइट फ्लायर्स, दे कम ओवर हियर। लिटिल इंडियन पेपर काइट्स compete with those from Japan, USA, UK and other countries। तो इंडिया में जो बनी हुई फ्लाइट्स होती है वो नॉर्मली पेपर काइट्स होती है, लेकिन ये पेपर काइट्स जो है compete करती है यूके, यूएस, जापान, यहाँ पर बने हुए काइट से, इन कंट्रीज में बने हुए काइट से। तो सोचो ये फेस्टिवल कितना धमाकेदार फेस्टिवल होता होगा। Excited spectators watch in awe as marvelous shapes such as eagles and snakes soar into the skies। और जो लोग यहाँ देखने आते हैं, जो पतंग उड़ा रहे हैं, वो तो डेफिनेटली मजा करते ही करते हैं, लेकिन जो लोग ये काइट फेस्टिवल देखने आते हैं वो तो इतने एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, इतने सरप्राइज हो जाते हैं कि बाप रे, वो तो देखते ही रह जाते हैं। ओ दैट इज वंडर, अमेजमेंट, कि क्या पतंग है, क्या पतंगे हैं। ऐसे एक्साइटेड स्पेक्टेटर्स वॉच इन ऑ, बहुत एक्साइटेड रहते हैं अलग अलग टाइप की पतंग देखने के लिए। और कौन से शेप्स यहाँ कहे गए हैं? ईगल्स एंड स्नेक्स। वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस फेस्टिवल इज द पतंग और काइट बाजार। एक हाईलाइट अगर हम इस फेस्टिवल की बात करते हैं, एक स्पेशल फीचर अगर हम इस फेस्टिवल की बात करते हैं, वो है यहाँ का पतंग बाजार, काइट बाजार। यस, अ मार्केट स्पेशली फॉर काइट्स। और ये जो है बिल्कुल अहमदाबाद के बीचों बीच, इन द हार्ट ऑफ द अहमदाबाद, विच इज ओपन 24 आवर्स अ डे। यानी पूरा एक हफ्ता, फॉर अ होल वीक, पूरा एक हफ्ता 24 घंटे, यानी 24/7 बोल सकते हैं, फॉर 7 डेज ये बाजार जो है खुला रहता है। और अगर आपको वाकई में इसका पता लगाना है कि ये बाजार 24/7 मतलब क्या है, तो आप कभी भी मिडनाइट में जाके देख लो, रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे जाके देखो, आपको खचाखच भरा हुआ मिलेगा। यहाँ पर लोग अपने धागे को, मांझे को जो है शार्पन करते रहते हैं और अलग अलग काइट्स जो है पसंद करते हैं और खरीदते हैं। और एक या दो काइट नहीं, दर्जनों में, 100 में, हजारों में ये लोग काइट्स खरीदते हैं। So a visit to this bazaar in the middle of the night is enough to prove that the entire city is obsessed with kites। मतलब रात में अगर आपने विजिट किया तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा सिटी जो है किस तरह से पागल है पतंग उड़ाने के पीछे। यानी उनको पतंगों के अलावा और कुछ नहीं सूझेगा, ऑब्सेस्ड, मैड आफ्टर समथिंग एंड कैनॉट थिंक ऑफ एनीथिंग अदर, एनी अदर थिंग। सो पीपल क्राउड द स्ट्रीट्स एंड बाय देयर स्टॉक्स। लोग जो है एकदम भीड़ कर लेते हैं स्ट्रीट्स में और अपने अपनी पतंगे अपने अपने अनुसार
प्राइस के हिसाब से भी पतंगे होती हैं, है ना, कम प्राइस वाले भी होते हैं, ज़्यादा प्राइस वाले भी होते हैं। तो अपने अपने हिसाब से सभी अपने अपने स्टॉक्स खरीद लेते हैं। हैगलिंग थ्रू द नाइट, हैगलिंग इज बार्गेनिंग, बार्गेन भी करते हैं, यहाँ पे बार्गेनिंग भी काफ़ी होती है। थ्रू द नाइट यानी पूरी रात वो लोग पतंग ही खरीदते रहते हैं और दिन में उड़ाते हैं। तो सोचो ये 8 दिन वो लोग कितने थक जाते होंगे जब उनका पूरा बिजनेस बंद है लेकिन सिर्फ पतंग उड़ा रहे हैं। स्किल्ड क्राफ्ट्समैन डेमोन्स्ट्रेट एज ओल्ड काइट मेकिंग स्किल्स and how to prepare the special thread used for kite flying. स्किल्ड क्राफ्ट्समैन ये कई सालों से जो पतंग बनाते आ रहे हैं, ऐसे क्राफ्ट्समैन जो हैं वो अपनी कारीगरी बताते हैं। दे डेमोन्स्ट्रेट, कारीगरी बताना, द एज ओल्ड काइट मेकिंग स्किल्स, यानी बरसों से ये लोग काइट बनाते आ रहे हैं, तो ये लोग एकदम माहिर हो गए हैं, स्किल्ड हो गए हैं काइट बनाने में। और इनके जो स्किल्स है, क्योंकि इनके जैसे काइट कोई नहीं बना सकता है, इनके जो स्किल्स है वो दिखाई देते हैं इनके काइट्स में। और एक स्पेशल मांझा भी बनाया जाता है। हाउ टू प्रिपेयर द स्पेशल थ्रेड यूज्ड फॉर काइट फ्लाइंग, कैसे स्पेशल मांझा बनाया जाता है। मिक्सचर्स ऑफ ग्लू एंड ग्राउंड ग्लास कवर द लाइन्स, लाइन्स मतलब धागा, और मिक्सचर्स ऑफ ग्लू एंड ग्राउंड ग्लास, ग्राउंड ग्लास मतलब एकदम बारीक बारीक किया हुआ कांच का चूरा, कांच के टुकड़े हम बोलते हैं, टुकड़े नहीं, टुकड़े तो थोड़े बड़े होते हैं, चूरा एकदम फाइन पाउडर जैसा बनाया हुआ। और उस पाउडरी ग्लास को गम यानी ग्लू में मिक्स करके पूरे धागे पे लगाते हैं, रोल करते हैं पूरे धागे पे, ताकि वो ग्लास जो है वो धागे को गम के साथ वो चिपक जाए। और फिर बाद में उन्हें सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद में दे आर देन ड्राइड एंड देन रोल्ड इनटू रील्स, और फिर रील्स में उनको रोल किया जाता है, जिसे हम फिरकी कहते हैं। और फिरकी हर कोई जानता है क्या होता है। दे आर कॉल्ड रील्स इन इंग्लिश, फिरकीज इन हिंदी। दीज लाइन्स आर सो शार्प दैट केयरलेसली यूज्ड दे कैन कट अ फिंगर, और ये मांझे इतने तेज होते हैं कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी उंगलियां कट सकती है। हम कई बार देखते हैं जो पतंग उड़ाते हैं जैन फैब में, उनके उंगलियां जगह जगह पे व्हाइट पट्टी लगी हुई रहती है, बैंडेजेस लगे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी उंगलियां कट जाती है, या फिर अपने आप को बचाने के लिए वो लोग पहले से ही बैंड लगा देते हैं, ऐसा भी होता है। द एक्साइटमेंट डज नॉट एंड विद अ नाइट फॉल, नाउ इट इज टाइम फॉर इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट्स ऑफन स्ट्रंग ऑन वन लाइन टू बी लॉन्च्ड इनटू द स्काई। अब ये जो एक्साइटमेंट है, पूरा दिन सुबह की पहली किरण से लेकर शाम तक नॉन स्टॉप उड़ते हैं, है ना, पतंगे उड़ते हैं, उड़ाते हैं। लेकिन ये एक्साइटमेंट रात होते ही खत्म नहीं हो जाती है कि भाई नाइट हो गई अभी बंद कर दो, नहीं। अब टाइम आया है इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट्स का। ये पिछले कुछ सालों से चल रहा है, इसके पहले नहीं था। पिछले मेरे ख्याल से कुछ 8-10 सालों से मैं ये चीजें देख रही हूँ। बॉक्स काइट जो है, इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट मतलब जिसके अंदर लाइट रहती है, आप आग जलाते हो। ये आजकल हर जगह पे मिलता है, बच्चे को, आप लोगों को सबको पता ही होगा जो काइट फ्लाई करते हैं। नहीं तो इस बार जनवरी में 2021 में जब आएगा तब बॉक्स काइट देख लेना आप किस तरीके से आकाश में सब जगह पे आपको रात के टाइम पे ये जलते हुए दिखाई देंगे। और बहुत जो भी इसे उड़ाता है ना, उसे बहुत खुशी मिलती है दिल से। ऑफन स्ट्रंग ऑन वन लाइन, एक ही धागे पे ये बंधा हुआ रहता है। टू बी लॉन्च्ड इनटू द स्काई, लॉन्च्ड इनटू द स्काई मतलब आसमान में उड़ने के लिए उसे छोड़ना है। और छोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे उसको आग जलानी होगी, और उसमें वैक्स रहता है ऑलरेडी, और वो जैसे ही आग जलती है वो आग के स्टीम से वो ऊपर 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 स्काई में चलता है। जैसे हमने बलून रहते हैं ना जो गैस पे चलते हैं, बलून्स ऊपर उड़ते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये आग के वजह से जो स्टीम बनता है उस स्टीम से ये ऊपर उड़ता है। और इन्हें कहा जाता है टूकल्स। दे एड अ ग्रैंड ब्यूटी टू द डार्क स्काई, एक बहुत ही खूबसूरती देते हैं डार्क स्काई को ये। एंड कम्पीट विद द ब्रिलियंस ऑफ द स्टार्स, और तारों की चमचमाहट के साथ में कंपटीशन करते हैं कि तुम ज्यादा चमक रहे हो या हम ज्यादा चमक रहे हैं। तो इसी के साथ ही ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन अपना खत्म होता है। और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, चाहे मार्जिन क्वेश्चन आंसर्स है, वर्कशॉप है या वार्मिंग अप एक्सरसाइज है, एंटायर थिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।